Om Shanti. Amrita Ben, am I audible? Yes, Rakhi. We have Amrita Ben today who will continue yesterday's Murli. Over to you, Amrita Ben. Thank you. So we remember Baba before we start reading the Murli. Om Shanti. So this Murli, we are continuing yesterday's Murli, and yesterday where Baba has made our state of sovereignty and empowered us. Today Baba is meeting with different groups. Each group is a Murli in itself. So we're going to read that. We have the first group in English, rest of the groups we have in Hindi. So we're going to read and listen to Murli in Hindi as well. So the first group where Bap Dada is meeting with the parties, the Murli is, the vibrations of self-transformation will bring about world transformation. Swaparivartan se Vishwa Parivartan. So Baba says, do all of you experience yourself to be souls who have the fortune of happiness? You have attained the fortune of happiness that you never even dreamt of. So everyone's heart sings the song. If anyone has the greatest fortune of happiness, it is I. This is the song in your mind. You have to make effort to sing a song with your mouth, but everyone can sing the song in the mind. The greatest treasure of all is the treasure of happiness, because there is happiness when there is attainment. Directly connected. Baba says when you have that sense of fulfillment, attainment, then you're happy. If there is a lack of attainment, then no matter how much someone tells another person to remain happy, no matter how much effort they make to remain happy, artificially, they are unable to remain happy. Because that inner emptiness, hollowness is there. So Baba says that attainment brings that real happiness. So do you always remain happy or only sometimes? Since you issue the challenge that you are the children of God, can there be a lack of attainment where God is? I want to check if you're not happy, there is some lack of attainment. And with children of God, then is there anything which is not attained? So you need to check that. What is that lack of attainment still in me, which is not letting me be happy? And somewhere I'm disconnected with God, who is making me complete in all attainments. So Baba is asking to check that you, the children of God, can there be a lack of attainment where God is? You also always have happiness because you're always embodiments of all attainments. This is the Swaman which we are going to carry with us today. I am the embodiment of all attainments. What was Father Brahma's song? I have attained that which I wanted. Panatha so Paliya. So is it the song of Father Brahma alone, or is it also the song of all of you? Does a wave of sorrow come sometimes? Till when will it continue to come? Now, no wave of sorrow should come for even a short time. That is the Lakshya what he gave in 93. That even for a short time, that wave of sorrow should not come. Since you are instruments for world transformation,
Can you not bring about this transformation in yourself? Do you want time even now? Just put a full stop. You will not receive such an elevated time, elevated attainment, or elevated relationships throughout the whole cycle. By saying, if with this elevated attainment you are not happy, then throughout the cycle there is nothing which is much more than this. So Baba says, just put a full stop now. So first of all, let there be self-transformation. Self-transformation, these vibrations of self-transformation will bring about world transformation. The speciality of double foreign souls is a fast life. So are you fast in your transformation? If someone abroad moves very slowly, they don't like it. So use this speciality for transformation. It is good. You're moving forward and will continue to move forward. By saying whatever qualities we have to use them in favor of us. Like we move forward in Purusharth. Fast transformation, self-transformation, but what Baba is today stressing on is fast transformation. You feel any of your act is not pleasant or is not in line with Baba's teaching, fast. Transform it fast. What Baba said, full stop. That fast change, that visible change and significant change should be there within us. It should be very, very reflecting and very, very significant. So how will that happen? Baba says, full stop, full of attainments and change fast. Your vision of recognition is very sharp in that you have recognized the Father. Now be intense in your efforts, intense in service, and intense in becoming complete and reaching your destination. That quality you have to use in service and in Purusharth. You want to claim the first number, do you not? Just as Father Brahma was first. So become Father Brahma's companion. And you will become first and come with the first. Becoming his companion. You have love for Father Brahma, do you not? Acha, mothers, you will perform wonders, will you not? What the world considers to be impossible, you have done and shown to be easy. You're performing such wonders. People of the world think that mothers are weak and they cannot do anything, whereas you're making impossible possibles. What Baba, the vision with which Baba sees us is such elevated vision. He doesn't see us in the present form, but he says, you can do wonders. He says, sees a maximum and an elevated state. So Baba says that another important point, that you're making impossible possible. You have hoisted the flag of purity, have you not? Purity. For self-transformation, retaining this basic dharana, purity. It's important. So Baba says, are you holding on to the flag in your hand very well, or does it sometimes come down? Are we very strong, determined in our dharana, or we become loose somewhere? Constantly continue to hoist the flag of challenge of purity. It's very essential, the basic dharana in Gyan. So, another group where Baba is meeting with the parties and Baba says about Amrit Vela. Baba कहते, रोज अमृत वेले combined स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ. Amrit Vela is that time of attainments. What Baba said with the first group, attainment and happiness. So Amrit Vela, combined स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ. सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो. कितने भी परिस्थिति मुश्किल अनुभव करावे, मुश्किल को सहज करने वाले योगी. ऐसा अनुभव होता है, सदा सहज है. पुरुषार्थ should be easy. So Baba says, ये easy है. मुश्किल होने के कारण
मुश्किल होने का कारण क्या है? बाप का साथ छोड़ देते हैं। बाबा ने पक्का कराया, मेक ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा एज अ कंपेनियन। अगर हम साथ छोड़ देते हैं तो हमें डिफिकल्ट लगता है। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो। कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। आत्मा अगर कमजोर है तो सहज भी मुश्किल लगेगा। जैसे शरीर में ताकत नहीं है तो थोड़ा भी वेट हमें हैवी लगेगा, लेकिन अगर आत्मा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो बड़ी बात को भी वो इजी कर देगी, इजी रहेगी। तो बाबा कहते कि ऐसा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, बाप और आप कंबाइंड हो। किससे कंबाइंड है? जिससे कंबाइंड है वो कार्य करेगा। तो बाबा कहते सब इजी हो जाएगा। माताएं क्या समझती हैं? कंबाइंड है तो सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। इससे सहज काम क्या होगा? तो बहुत इजी है। तो बाबा कहते कि पुराने जन्मों के संस्कार हैं जो याद नहीं रहता और मुश्किल लगता है, तो अब नए जन्म में स्मृति के संस्कार पक्के करना है। विस्मृति नहीं, बट स्मृति। तो उसकी युक्ति बाबा क्या बताते? रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसी स्मृति होती है, स्मृति स्टेट ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस, वैसे ही हमारी कृति होगी, वृत्ति होगी, एटीट्यूड होगा, वैसे ही विजन होगा, दृष्टि, एवरीथिंग विल फॉलो विद स्मृति। दृष्टि, कृति, वृत्ति, देन सृष्टि। जैसी स्मृति वैसी सृष्टि। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अमृत वेले अपने को स्मृति स्वरूप में रखना है। वो तिलक, वो स्मृति अपने को लगा देना है। तो वो तिलक लगाते हैं, सदा याद रहे हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। तो स्मृति का तिलक। फिर बाबा ने कहा कि यह ध्रुव सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनीक लगता है। तो सभी जो भी जहां से भी आए हैं सभी संतुष्ट हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, क्वालिटी, संतुष्टता। बाबा कहते सभी संतुष्ट हैं, सदा साथ हैं, सदा संतुष्ट है। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड है और सदा ही कंबाइंड रहे, साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। हर सेकेंड, हर संकल्प में साथ है। ये प्यार की निशानी है, साथ, कि संकल्पों में साथ रहे। तो क्या याद रखेंगे इस मूल्य से? अमृत वेला, स्मृति का तिलक, संतुष्टता और कंबाइंड, सदा साथ की स्मृति। विद द थर्ड ग्रुप, समय अमूल्य है, समय को बचाना ही तीव्र पुरुषार्थ। समय अमूल्य है, समय को बचाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। कोई चीज बचाएंगे तो ही उसे हम इफेक्टिवली कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो समय हमारा कहाँ जा रहा है? आज बाबा वो चेकिंग कराते, और समय को बचाना वही हमारा पुरुषार्थ है। समय को हमने बचा लिया, बाबा वो समय सफल करा देगा। हमें कितना ध्यान रखना है कि हमारा समय कहीं वेस्ट ना जाए। जो आज बाबा ने ऊपर कहा, फुल स्टॉप। इस युक्ति से हमें समय को बचाना है। सदा ये नशा रहता है कि हम अभी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और आगे भी अनेक जन्म देवात्मा रहेंगे। आप भविष्य को प्रत्यक्ष कर रहा है। अभी जितना नशा उतना वहां पर भी प्राप्ति और नशा। तो भविष्य वर्तमान से ही अभी दिखाई देता है, प्रत्यक्ष हो रहा है। अभी श्रेष्ठ तो
तभी भविष्य देवात्मा बनेंगे। वर्तमान का फल भविष्य में मिलेगा। महत्व वर्तमान का है, तो वर्तमान do we value time? Time is a treasure. बहुत सारे खजानों में से समय बहुत अमूल्य खजाना है। तो बाबा कहते इतना महत्व हम देते हैं ना, अपने समय को वैल्यू देते हैं, या ऐसे ही समय व्यर्थ जा रहा है। तो वर्तमान समय के महत्व को सदा याद रखते हो। इस समय का एक एक सेकंड कितना श्रेष्ठ है। सेकंड भी गवाया, संगम युग का सेकंड और युगों के एक वर्ष से भी ज्यादा है। संगम युग का एक सेकंड युगों के वर्ष से ज्यादा। तो गवाया तो वर्ष गवा दिए, कई वर्ष, और कमाया तो कई वर्षों की प्रारब्ध कमा ली। तो बाबा कहते ये कनेक्शन है, संगम युग का सेकंड। तो इतना महत्व सदा याद रहता है या कभी कभी याद रहता है? सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। सदा याद रहे समय की वैल्यू, तो बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे और बाबा की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। भक्त लोग तो दुआ लेने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी तकलीफ लेते हैं, और आपको बाप की दुआएं हर समय मिलती रहती हैं। तो दुआएं जमा करते हो या खर्च हो जाती है? समय जमा करना, बचाना, अर्थात दुआएं जमा करना। आपने आज ये कनेक्शन दिया, समय बचाना, वेस्ट ना करना, अर्थात दुआएं कमाना। जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती। तो बाबा कहते माया आती है। बाबा पूछते कि माया आती है, जिसके पास सदा परमात्मा दुआएं हैं उसके पास माया आ नहीं सकती। माया आती है या दूर से ही भाग जाती है, या नजदीक आकर फिर भागती है? क्योंकि आएगी तो फिर भगाना भी पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा ना, समय जो बहुत वैल्यूएबल है। माया आई, पेपर आया, हमने अपनी एनर्जी लगाई, फिर वो गई, ये टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन बाबा कहते दूर से ही माया विदाई ले ले। इतनी हमारी शक्ति, इतनी हमारी परख हो कि माया दूर से विदाई ले। तो बाबा कहते आएगी अगर माया, पेपर आएगा तो उसे भगाने में समय जाएगा। तो ऐसे शक्तिशाली बनो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। जैसे कितने भी खौफनाक जानवर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइट है, रोशनी है, तो वो आगे नहीं आते। ऐसे सर्व शक्तियों की लाइट सदा आपके साथ है, तो माया दूर से भाग जाएगी। कितनी भी खौफनाक हो, लेकिन अगर हमारे पास परमात्मा लाइट है, शक्तियों की लाइट है, तो वो दूर से भाग जाएगी। तो दूर से भगाने वाले हो या नजदीक से भगाने वाले, क्योंकि समय अमूल्य है। अगेन समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन देखो बाबा कितनी गुह्य देते कि समय को बचाना। तो तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात माया जीत, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा विजयी। हम डेफिनेशन नोट करते जाएंगे, इस वन वर्ड्स, समय को बचाने वाले, माया जीत, विजयी, युद्ध करने वाले नहीं, तो सदा विजयी हो, कभी हार नहीं होती। देखो गाया हुआ भी है कि जहां बाप है वहां विजय है ही। बाप सदा साथ है तो विजय है। थोड़ा भी किनारा किया तो युद्ध करनी पड़ेगी। तो युद्ध करने वाले नहीं, विजयी रतन हो। कब तक युद्ध करेंगे? बुद्धि से थोड़ा भी किनारा किया तो वो युद्ध, बाबा कहते कब तक करेंगे? युद्ध करते करते क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी।
फिर तो वो सतयुगी समय पे नहीं आएंगे, युद्ध की निशानी ही दिखाते हैं, चंद्रवंशी राज्य। तो चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी हो, सूर्यवंशी अर्थात सदा विजय। Shanti, I guess because of some technical issue, Amrita Ben has got logged off. Just let's wait for a few moments and she should join back. सॉरी, ओम शांति। सो बाबा वाज सेइंग कि युद्ध नहीं करना है, परंतु सदा विजय, और सदा विजय ऐसा अनुभव हो। जितना जितना हम श्रीमत को पालन करते हैं, जितना हम निरंतर विजय का अनुभव, विजयी बनते हैं, उतना विजय का अनुभव हमारा दृढ़ होता है। तो बाबा कहते अधिकार कभी रहे कभी नहीं रहे, यह नहीं होता। विजय तो जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकार तो सदा ही रहता है। आपको अगर कोई अधिकार प्राप्त है तो वो सदा रहेगा, तो अधिकार सदा रहता है। लेकिन कई मूल्यों में बाबा ने इसको बहुत स्पष्ट बताया है कि जब तक हमारा कर्तव्य नहीं होगा, कर्तव्य के आधार से अधिकार होता है। अगर हम सिर्फ अधिकार क्लेम करें परंतु अपना कर्तव्य ना करें, तो वो अधिकार सदा नहीं रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा विजय अनुभव अधिकार के रूप में कब अनुभव होगी, कब अनुभव होगी, जब हम उसे निरंतर निर्विघ्न रहेंगे और तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और कंबाइंड बाबा से रहेंगे, बार बार अनुभव करेंगे, कर्तव्य करेंगे, तो अधिकार अनुभव होगा। तीव्र पुरुषार्थ करने वाले होना, सेवा करना अर्थात खाता जमा करना। सेवा नहीं है, मेवा है। नाम सेवा है लेकिन है मेवा। सबसे पहली प्राप्ति स्वयं को। तो सब जगह सेवा अच्छी चल रही है, सेवा और संपूर्णता दोनों में आगे हो, निर्विघ्न सेवा में आगे हो, निर्विघ्न सेवा, यही संगम युग की विशेषता है। तो निर्विघ्न सेवा है या विघ्न आते हैं, जो बाबा ने कहा स्पष्ट कि माया को, विघ्न को दूर से ही विदाई देना है, तो हमारी सेवा निर्विघ्न है। समाचार तो बाप को पता पड़ता है कि विघ्न आते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं कि एग्जाम्पल बनना चाहिए कि जितना ज्यादा सेवा उतना ही निर्विघ्न। ये नहीं कि विघ्न आ रहा है उसको डील कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जो कंबाइंड होगा, जो तीव्र पुरुषार्थी होगा, वो निर्विघ्न होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे एग्जाम्पल बनना है, निर्विघ्न सेवा में नंबर 1 लेना है। आत्माएं बहुत अच्छी हो, बस थोड़ा बाबा कहते हैं निर्विघ्न बन आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प करो। तो बाबा हमसे आज दृढ़ संकल्प लेते कि निर्विघ्न बन हमें आगे बढ़ना है।
तो बाबा अलग अलग जोन, गुजरात, सभी की विशेषताएं बताते और बाबा कहते हिम्मत रखनी है, विघ्न आने ना पाए, विजय का अधिकार सदा प्रत्यक्ष रूप में हो। अच्छा विजयी भव। विजय का बाबा ने आज वरदान दिया, विजयी भव। नेक्स्ट प्रूफ बाबा कहते मनसा सेवा के लिए स्वयं की स्थिति पावरफुल बनाओ, निरंतर सेवाधारी बनो। मनसा सेवा के लिए स्वयं की स्थिति पावरफुल बनाओ, निरंतर सेवाधारी बनो। इस समय मनसा सेवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो चुका है। बाबा कहते स्थिति कैसी हो? पावरफुल, निरंतर। सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है ना, परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है? असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। बाबा कहते मार्जिन ही नहीं है कि आत्मा और परमात्मा के स्नेह को कोई शक्ति तोड़ सके। यह अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी है। किस बात में सहयोगी? जो बाप के डायरेक्शंस हैं उसमें सदा सहयोगी। स्नेही की निशानी ही है सहयोगी। जिससे स्नेह होगा उसे सहयोग जरूर देंगे। तो बाबा कहते कि सहयोगी हैं, सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी हैं और सदा सेवाधारी हैं। बाबा की श्रीमत पे चलना अर्थात सहयोग देना, और सदा सेवाधारी हैं। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी, सदा सेवाधारी। ये टाइटल आज हम अपने लिए पक्का करें कि सदा सेवाधारी। कोई भी कर्म कर रहे हैं, सेवा। ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना। ब्राह्मणों का क्या काम है? सेवा करना। वो नामधारी ब्राह्मण धामा खाने वाले और आप सेवा करने वाले, वो प्राप्ति लेने वाले और आप हो देने वाले। तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर हैं, ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। चांस पर सेवा करने वाले हो, वह सदा सेवाधारी हो। खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो यह सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है। कोई भी कार्य करते हो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। वृत्ति में इतना गहराई तक बाबा की याद हो तो उससे वायुमंडल बनता है। सेवाधारी अर्थात हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, कर्म से सेवा करने वाली। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है। हम जैसे बाबा हमें इतनी एलिवेटेड विजन से देखते हैं, हम भी किसी को भी इतने एलिवेटेड विजन से देखते हैं, सोल कॉन्शियस स्टेट से देखते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? सेवा। तो निरंतर सेवाधारी है। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे ये शरीर है तो श्वास के बिना नहीं रह सकता, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती। अगर सेवा में बुद्धि नहीं है तो बुद्धि मूर्छित होना अर्थात बाबा से कनेक्शन टूटा हुआ है, विस्मृति। मूर्छित अवस्था अर्थात विस्मृत की अवस्था, याद ही नहीं है, न स्वयं की न बाबा की। बाबा कहते सेवा में बिजी रहेंगे तो सदा स्व की और बाप की याद रहेगी, तो होश में रहेंगे। और अगर बिजी नहीं है सेवा में
ना बुद्धि या तो सेवा करेगी या डिसर्विस करेगी, दो में से एक ही कर सकती। अपनी बुद्धि को हमें कहाँ एंगेज करना है, इतना अटेंशन जो आज बाबा बार बार खिंचवा रहे कि सदा कंबाइंड रहो, तीव्र पुरुषार्थ करो, निर्विघ्न बनो, विजयी बनो, बुद्धि को एक ठिकाने पर लेके जाना है, तब जाके वो स्मृति बनी रहेगी और निरंतर सेवा होगी। तो बाबा कहते ऐसे पक्के सेवाधारी होना, तो जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना सेवाधारी। सेवा का चांस तो बहुत है कि कभी किसको मिलता है किसको नहीं। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन मनसा से सेवा का चांस तो हर समय है। सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है या मनसा सेवा सहज है? मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, भाषण करके आ जाएंगे, कोई कोर्स करने वाला आएगा तो भी करा देंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। अगर मनसा थोड़ा भी कमजोर है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। वाणी की कर सकते हो, ऐसे करना नहीं है लेकिन चलता है, बाबा कहते हैं वो तो करना ही है वाणी की सेवा, लेकिन मनसा सेवा के लिए मनसा पावरफुल। तो अब मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा करो, तब फुल मार्क्स ले सके। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा, तो बाबा कहते फुल मार्क्स ले सकेंगे। ऐसे नहीं कि कोई कर्म कर रहे हैं तो मन कहीं है, मुख से कुछ और निकल रहा है, कर्म कुछ और है, नहीं, तीनों इन लाइन हो और तीनों सेवा अर्थ, मन वचन और कर्म। तो बाबा कहते कि सब प्रकार की सेवा करो तो फुल मार्क्स लेंगे, निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि जितना सेवा करते हो उतना फल मिलता है, प्रत्यक्ष खुशी तो मिलता ही है। तो सेवाधारी अर्थात वो प्रत्यक्ष फल खाने वाले। फिर बाबा पूछते सभी संतुष्ट आत्माएं होना, संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? जो बाबा ने पहले भी पूछा कि संगम पर खुश नहीं रहेंगे, संगम पर अटेनमेंट नहीं होगी तो कब होगी? संगम है ही संतुष्टता का युग, संतुष्ट हम नहीं है तो फिर संगम पे नहीं है। संगम युग अर्थात संतुष्टता का युग, तो सभी संतुष्ट हैं कि थोड़ी खिटखिट है, ना स्वयं में ना दूसरों के संपर्क में आने में। स्वयं संतुष्ट हैं लेकिन संपर्क में आने में संतुष्टता, इसमें थोड़ा फर्क है। बाबा कहते ऐसे हो नहीं सकता, अगर स्वयं में संतुष्ट होंगे तो संपर्क में भी संतुष्टता होगी। माला के मन के होना, तो माला कैसे बनती है? संबंध से। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला बनेगी? तो माला के मन के हैं, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है, तब माला के मन के बनेंगे। क्योंकि सभी परिवार वाले हो, निवृत्ति वाले नहीं। छोड़ना तो कुछ नहीं है, लेकिन बाबा कहते माला के मन के बनना, संतुष्ट रहना भी और करना भी। बाप दादा, तो बाबा कहते परिवार वाले हो, परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना और करना दोनों। बाप दादा सभी स्थानों को एक दो से आगे ही रखते हैं, ऐसे नहीं फलाना स्थान आगे है दूसरे पीछे है। बाप के लिए सब आगे है, चाहे नए चाहे पुराने, चाहे गुप्त है चाहे प्रत्यक्ष। बाबा कहते गुप्त दान महादान कहा जाता है। ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी हैं, नाम आउट नहीं होता है तो ऐसे नहीं समझो पीछे हैं, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे है।
आप में से कई लोग नहीं हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, गुप्त पुरुषार्थी हैं, तो बाबा कहते वे सदा आगे हैं। भगवान का सर्टिफिकेट है, सदा आगे हैं। तो सभी क्या याद रखेंगे? कौन हो? निरंतर सेवाधारी, सदा सेवा की स्टेज पर पाठ बजा रहे, घर में नहीं स्टेज पर हो, सेंटर पर नहीं स्टेज पर हो। तो स्टेज पर अलर्ट रहते हैं, स्टेज पे जो होगा वो अलर्ट रहेगा। स्टेज पर जाएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे, अलबेले नहीं। तो सदा सेवा की स्टेज पर है, इस स्मृति से सदा अलर्ट रहना है। स्टेज पर हूं और अलर्ट रहना है। नेक्स्ट बाबा ग्रुप नंबर 5 से मिलते, जिसमें फिर बाबा हमें अनेक वरदान और टाइटल देते। मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा कहते बन समय पर हर शक्ति को कार्य में लगाओ। अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति को जिस समय आह्वान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। मास्टर ना, तो जब आह्वान करेंगे तो वो शक्ति प्रैक्टिकल में आ जाए। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने, ऐसे हैं। जिस समय सहन शक्ति चाहिए उस समय स्वरूप में आती है या थोड़े टाइम बाद आती है। अगर मानो शस्त्र 1 मिनट पीछे काम में आया तो विजयी होंगे? विजय नहीं हो सकेगी। जिस समय जो शस्त्र यूज करना है वो काम में नहीं आया तो विजय नहीं हो सकती। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जैसे कई परिस्थिति में सोचते हो कि किनारा नहीं करना है, सहन करना है, लेकिन फिर सहन करते करते सामना करने की शक्ति में आ जाते हो। सोचते ना कि किनारा नहीं करना है, हमें सहन करना है, संबंधों में विशेष। जो बाबा ने कहा कि संतुष्ट करना है हर एक को, तो हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमें किनारा नहीं करना है, हमें सहन करना है। लेकिन सहन करते करते कौन सी शक्ति इमर्ज हो जाती है? सामना करने की शक्ति ना, मास्टर के ऑर्डर के बिना ही आ जाती है। एक होता है मास्टर ने ऑर्डर किया और आ ही नहीं रही है, तो वो भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। और दूसरा है ऑर्डर नहीं किया फिर भी आ गई, ये भी अथॉरिटी नहीं है। तो इतना डीप और इतना कंट्रोल हमारा स्वयं पर हो। तो बाबा कहते ऐसे ही निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन निर्णय शक्ति यथार्थ समय पर यथार्थ निर्णय नहीं ले तो उसको क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान या कमजोर। तो क्या कहेंगे? ऐसे हर एक शक्ति की हमें चेकिंग करना, तो कितनी शक्ति किस समय किस परिस्थिति में यूज होना है और वो हम यूज कर सकें। इतनी अथॉरिटी हमारी अपनी शक्तियों पर हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वो शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। 1 सेकंड का भी अंतर हुआ, 1 सेकंड जहां आपको चुप रहना था आपने बोल दिया तो जीत की बजाय हार हो जाएगी। सेकंड की बात है। निर्णय करना हाँ या ना, इतना पावरफुल हो हमारा इंटेलेक्ट, इतना निर्णय बुद्धि कि हाँ या ना। और हाँ के बजाय अगर ना कर लिया तो सेकंड का नुकसान सदा के लिए हार खिलाने के निमित्त बन जाता है। सदा के लिए क्यों? वो इंप्रेशन तो हमारे पास हमारे साथ चलता है ना, फिर कल्प कल्प भी चलता है। फिर दूसरे कर्म से हम उसे मर्ज करते हैं बट वो बन तो जाता है। तो बाबा कहते 1 सेकंड की हार, तो फिर सेकंड उसका फर्क पड़ जाता है।
तो बाबा कहते कि निर्णय शक्ति को भी ट्रायल करना है। सेकंड की बात है, सेकंड का नुकसान सदा का हार बन जाता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है जो हर शक्ति ऑर्डर में है। जैसे ये शरीर के कर्म इंद्रियां ऑर्डर में है, हाथ पांव जब चलाओ जैसे चलाओ चलते हैं, ऐसे सर्व शक्तियां इतना ऑर्डर में चले, जितना यूज करते जाएंगे उतना अनुभव करते जाएंगे। बाबा ने युक्ति भी बता दी, जितना हम यूज करेंगे उतना अनुभव करेंगे। फिर बाबा माताओं को एड्रेस करते कि माताओं में भी समाने की शक्ति है या क्रोध आ जाता है, थोड़ा बच्चों पर आ जाता है, पांडवों को गुस्सा आता है। ऐसे बाबा हर एक को एड्रेस करते। कोई भी परिस्थिति सामने आए, सेकंड में अपनी सीट पर सेट हो जाओ। कोई भी परिस्थिति आए, युक्ति बाबा बताते सेकंड में अपनी सीट पर सेट हो जाओ। सेकंड में निर्णय श्रीमत प्रमाण हमें लेना है, सेकंड में लेना है, उसको डिले नहीं करना है। और राइट निर्णय श्रीमत प्रमाण। सीट पर बैठने वाले अपसेट नहीं होते। तो बाबा कहते लक्ष्य अच्छा है, लक्षण भी अच्छे हैं, सभी महावीर हैं। कभी कभी थोड़ा माया से खेल करते हो, तो आपके विजयी सदा के विजयी बनेंगे। जैसे बाबा ने कहा अभी एक बार हारे तो सदा काल का वो नुकसान हो जाता, तो विजय भी ऐसे है कि अभी एक बार विजयी बने तो सदा काल का वो विजय निश्चित होता है। तो अब विजयी नहीं तो कभी विजयी नहीं। इसलिए बाबा याद दिलाते कि आप कल्प कल्प के विजयी हो। तो इस कल्प में विजय फिर कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कल्प कल्प हम विजयी बने। तो बाबा कहते विजय हो ये स्मृति भी रहे, और विजय बनना है ये लक्ष्य भी रहे, और ऐसा फिर पुरुषार्थ भी रहे हमारा। तो संगम, बाबा कहते संगम युग विजय प्राप्त करने का युग, हार खाने का नहीं, हार तो वापस से खाते आए। बाबा कहते संगम युग जो है विजय प्राप्त करने का युग है। इस युग को वरदान है। और हम संगम युग पर कब रहेंगे? पहले मूल्य में बाबा ने क्लियर किया, स्मृति स्वरूप हैं तो संगम युग पर हैं, और संगम युग को तो वरदान है विजयी भव। तो हमें क्या करना है? सिर्फ स्मृति में रहना है। तो वरदानी बन विजयी बनो। फिर बाबा पूछते नया प्लान सेवा का। प्लान तो बनाना है, सेवा करनी है, समीप आत्माओं को लेकर आना है। सेवा के लिए भी बाबा ने डायरेक्शन दिया। फिर लास्ट जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 6, बाबा ने फिर से एक और स्थिति, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बच्चों के सामने स्पष्ट की, त्रिकालदर्शी स्थिति। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर तीनों कालों को देखो तो सदा खुशी रहे। खुशी की बहुत सारी युक्तियां आज बाबा ने बताई ना। प्राप्ति स्वरूप रहेंगे तो खुशी है, कंबाइंड रहेंगे तो खुशी है। आज बाबा कहते त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहेंगे और तीनों कालों को देखेंगे तो खुशी रहेगी। सदा यह नशा रहता है कि हम विशेष आत्माएं हैं। तो गाया हुआ है कोटों में कोई, कौन सा इंटॉक्सिकेशन हमारे अंदर? वो 1 in a million, कोटों में कोई। तो बाबा कहते पहले सुनते थे, अब अनुभव कर रहे थे कि हम कोटों में कोई आत्माएं हैं और सदा बनेंगी। कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट इस ड्रामा के अंदर हमारा निभा हुआ है? हम तो इग्नोरेंस में थे। पापा ने आके बताया कितना विशेष पार्ट हमारा इस ड्रामा में निभा हुआ है। अपने पार्ट को भी उतना महत्व देना जितना बाबा देते, तब जाकर हमसे उस लेवल की सेवा और उस लेवल की प्राप्ति हमें होगी। महत्व देना, जैसे बाबा ने कहा समय को महत्व, अपने पार्ट को महत्व देना, हर एक के पार्ट को महत्व देना। तो बाबा कहते आपको तो विशेष इस ड्रामा के अंदर इतना ऊंचा पार्ट मिला हुआ है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। पक्का निश्चय है ना, कल्प कल्प कौन बनता है? तो क्या कहेंगे? हम बनते हैं। तीनों काल का ज्ञान अभी आ गया,
त्रिकालदर्शी बन गए। 1 सेकंड में, बाबा कहते 1 सेकंड में तीनों काल को देख सकते हो, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। बाबा कहते तीनों कालों को देख सकते हो, क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे स्पष्ट है। कल पुजारी आज पूज्य, कल मांगने वाले आज देने वाले। बाबा कहते जब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होते हो तो कितना मजा आता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होते हैं तो सारे देश को देखने में मजा आता है ना, वो डिटैच्ड अवस्था अच्छी लगती है। तो बाबा कहते ऐसे आंतरिक डिटैचमेंट सब कुछ करते हुए साक्षी भाव, तो बाबा कहते मजा आएगा। ऐसे ही ये संगम युग टॉप पॉइंट है, तो इस पर खड़े होकर देखो तो मजा आएगा। कल थे और कल बनने वाले हैं, इतना स्पष्ट अनुभव होता है। कल क्या बनने वाले हो, देवता। कितनी बार बने हो, अनेक बार, तो कितना सहज और स्पष्ट है। फलक से कहते हो हम ही तो थे, अभी तो यही दिल कहता है, यही कहता है ना कि और कौन बनेगा, हम बनेंगे। इसे कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। फुल नॉलेज आ गई, एक काल की नहीं, तीनों कालों की। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है, बाप की महिमा में फुल कहते हैं, तो सदा सागर जैसे फुल है, तो बच्चे भी मास्टर सागर। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है, किसको खुशी रहती, सदा समान रहती है कि कभी कम कभी ज्यादा। खुशी के बहुत सारे आज बाबा ने पॉइंट्स बताए, तो वो स्मृति में रखना है। फिर बाबा कहते कि कुमारों कुमाया आती है, ऐसे बाबा अलग अलग ग्रुप्स को एड्रेस कर रहे। कुमार का ग्रुप है, कुमारियों का ग्रुप है, अधर कुमार। तो बाबा कहते दुनिया वाले सोचते रह जाते और आप संपन्न बन जाते हो। आप चैलेंज करते हो और क्या गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया। फिर बाबा माताओं को एड्रेस करते कि माताओं को भी कितनी खुशी है कि ना उम्मीद से उम्मीदवार बन गए। दुनिया वालों ने ना उम्मीद बनाया और बाबा ने उम्मीद का सितारा। इतनी एक्स्ट्रा खुशी कि हमें बाप ने पसंद किया, हमें बाप ने पसंद किया, इतनों में से मुझे पसंद किया। तो बाबा कहते कितनी खुशी की बात है, नशे की बात है। बाबा कहते पांडवों को भी ये नशा है कि सदा साथ कौन, सदा साथ निभाने वाला, सदा साथ रहने वाला। वरदानों से झोली भरी हुई है, वरदान भरते भरते इतने वरदानी बनते हो जो अनेक जन्म आत्माओं को वो स्वरूप दिखाई देता है। वरदानी नेचुरली देने का भाव रहेगा ऐसी आत्माओं। तो बाबा कहते जन्म जन्म आत्माओं को ये अनुभव होगा। फिर बाबा ने सेवाधारी फिर से पक्का कराया कि सेवाधारी अर्थात फिर से अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कृति से सेवा करने वाले, इसको कहेंगे निरंतर सेवाधारी। तो जैसे शरीर है, ये श्वास के बिना नहीं चल सकता बाबा ने कहा, तो उसी प्रकार ब्राह्मण जीवन भी अगर सेवा में बिजी नहीं है, अगर बुद्धि सेवा में नहीं है, तो कहीं और ऑक्यूपाइड है। और कहीं और ऑक्यूपाइड होना माना मूर्छित हो जाना, विस्मृति की अवस्था। तो बहुत टैक्टफुली और बहुत अलर्ट, आज जो बाबा ने शब्द कहा कि अलर्ट रह करके हमें बुद्धि को यूज करना है। सदा हम स्टेज पर हैं, सदा सेवाधारी हैं। स्वमान बाबा ने इतने ऊंचे ऊंचे जो हमें दिलाए हैं, हमें अपने ही रोल को महत्व देना है। और जो बाबा ने कहा स्व परिवर्तन, फास्ट परिवर्तन, इतना जितना भी समय से हम ज्ञान में है, वो सिग्निफिकेंट चेंज हमें खुद भी अनुभव हो, दूसरों को दिखाई दे। ये ज्ञान का, ये बाबा के साथ स्नेह का सबूत है। जो बाबा ने कहा कि कंबाइंड रहेंगे बाप के साथ, तो बाबा वर्क करेगा और वो परिवर्तन सहज और तीव्र होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। We'll take 30 seconds in silence and then we shall open for churning.
Whoever wants to share, you can start sharing now. Om Shanti sister. In group 5, it is mentioned that Master Sarva Shaktivan बन समय पर शक्ति को कार्य में लगाओ. समय पर, can you please give me some examples about किस शक्ति को किस समय पर यूज करना है? 1 or 2 example. मान लीजिए कोई संबंधों में कोई परिस्थिति ऐसे आती है जहाँ कोई बहस का या क्वारल का माहौल बनता है ना, इसमें हम भी इन्वॉल्व हैं. तो उस समय पे हमें, जैसे बाबा कहते हैं, विस्तार को संकीर्ण कर लो, विड्रॉ कर लो, विड्रॉ फ्रॉम द नेगेटिविटी एंड विड्रॉ फ्रॉम दैट जो एंगर है या नेगेटिव वाइब्रेशन है, उससे अपने को विड्रॉ कर लो. तो वो समय पे अगर हमने वो शक्ति यूज कर ली कि वहां से विड्रॉ करके वी कम बैक टू द शेल एंड हम अपनी शांत स्वरूप में स्थित हो गए, तो हम विजयी बन जाते हैं. लेकिन अगर वो परिस्थिति के प्रभाव में आकर हमने सामना करना शुरू कर दिया, सामना अर्थात वी नो कि उस समय जब झगड़ा हो रहा है उस समय कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, उस समय अगर हम भी सामना करने लगे, अपना पॉइंट प्रूव करने लगे, किसी को रॉन्ग प्रूव करने लगे, तो आप राइट होते हुए भी रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि आपने समय रॉन्ग चूज किया. तो वो शक्ति, सामना करने की शक्ति वहां वर्क नहीं करेगी, वहां विड्रॉल पावर वर्क करेगी. सामना कब करना है? सामना कोई परिस्थिति है या लेट्स से किसी को हमारी मदद की आवश्यकता है, उस समय सामना करना, मतलब उस तूफान का सामना करना. कुछ ऐसा बड़ी घटना घट जाती है तो सामना करना, आवाज उठाना, ना कि पीछे भागना. तो वहां हमें सामना करने की शक्ति यूज करनी, वहां विड्रॉ नहीं करना. कुछ गलत हो रहा है वहां से हम विड्रॉ कर लेंगे, जहां हमारा ओपिनियन मैटर करता है, जहां हमें राइट गाइडेंस देनी है, वहां हमें सामना करना है. लेकिन जब लोग अपनी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है तो अपने को उस समय विड्रॉ करके राइट समय पर जैसे इन्वॉल्व होना है, क्योंकि हम भी उस समय अपनी स्थिति में नहीं रहते. तो पावर्स को राइटली यूज करना, उसके लिए हमारी स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस और शांत होना आवश्यक है. इन कंट्रोल होनी चाहिए. अगर आप इन कंट्रोल हो तो शक्ति सही कार्य करेगी सही समय पे. तो वो जज करना. और ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज वर्क कर रही है ना, जैसे डर है या तो अहंकार है, अगर ये वैल्यूज कार्य कर रही है तो भी हम राइट पावर को राइट समय पे यूज नहीं कर पाएंगे, तो भी हमसे गलती होगी. इसलिए बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान का सम्मान पहले लो और कोई भी शक्ति को राइट समय पे यूज करो तो विजयी बनो. संध्या बेन. Thank you sister. Thank you. Yeah. और आज बाबा ने क्या कहा? मुरली में वैरायटी पॉइंट्स थे आज. तो ओम शांति सिस्टर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड. ये जो आपके फर्स्ट पेज पे जो था ना कि इवन 1 सेकंड के लिए सॉरो नहीं होना चाहिए, नो सॉरो. मतलब अगर सॉरो का कुछ फीलिंग भी आ रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस ऑल द टाइम, व्हिच मीन्स यू स्टिल नीड टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ टू कनेक्ट टू बाबा ऑल द टाइम. नहीं तो सॉरो 1 सेकंड के लिए भी नहीं आना चाहिए. मुझे वो लाइन फर्स्ट पेज पे ही आ गई, बिकॉज सॉरो का ये है कि sometimes it's not only for yourself, it is also for sometimes things around you, and you have that feeling of empathy or sorrow, but I think we have to replace that with feeling of power and give energy and hope rather than sorrow. मुझे ऐसे लगा. If you can just explain that better. Thank you. Om Shanti. वेरी ट्रू. आपने जो कहा कि अपनी वृत्ति, अपना दृष्टि चेंज कर लेना, तो वो आज जब आपने कहा ना त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर, तो जब हम तीनों कालों को देखते हैं तो हम प्रेजेंट सीन को देखते हुए क्वेश्चन नहीं उठाते और प्रश्न नहीं उठाते. दूसरा, यस, बाबा की स्मृति में हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो भी बहुत कार्य करती है, एंड वो सौरो या दुख की लहर नहीं आने देती. अगर कहीं दुख की लहर आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमारी अटैचमेंट है, किसी बात से तो अटैचमेंट है. तो
तो अगर हम बाबा से अटैच रहेंगे तो वो दुख की लहर नहीं आएगी, जो बाबा ने बहुत सुंदर आज बार बार मुरली में कहा कि कंबाइंड रहो। हाँ, बिकॉज वही हमारी सेफ्टी का साधन है। वो हमारे अंदर इतना सिक्योरिटी का भाव लेकर आता है कि कमजोर आत्मा को भी हम सिक्योर फील करा सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद दुख में आ गए तो हम वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी दूसरे को नहीं दे सकते। और हम आत्मा सिक्योर रहे उसका एक ही साधन है बाबा, बाबा की याद, कंबाइंड। और कोई इतना सिक्योर में फील नहीं करा सकता। सिक्योर रहेंगे तो दुख की लहर नहीं आएगी, फुल ऑफ अटेनमेंट्स रहेंगे, और दूसरों को भी वो सहयोग राइट वे में हम दे सकते। और उसके तीनों कालों को जानते हुए त्रिकालदर्शी की स्टेज पर जब हम रहते हैं तो भी सहयोग देना इजी होता है। तो बाबा ने कहा ना आज जी, Yeah, sorry, Amrita, continue. आपने हरप्रीत बहन ने बहुत सुंदर कहा कि हम बहुत हार्ड पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा इजी, जितना इजी रहेंगे ना उतना भी वो सौरों की वो दुख की लहर नहीं है। जी विनीश भाई। जो हरप्रीत बहन कह रहे थे कि सौरों में जाने के लिए टाइम नहीं लगता. When we fall, it doesn't take time, but to get up, it takes time. And if seen another way, when we say Nishchay Buddhi, once we have complete faith in our Supreme Father, then there is no issue of concern of getting into sorrow, because getting into sorrow, we anyways don't get anything. We get to sulk, but we don't get any result out of that, right? And once we constitute ourselves like, okay, we completely trust our Supreme Father. Like so many years of our life, we have seen so many ups and downs because of Maya, and we were not even aware of that. Now we are aware of that there is something called Maya and there is something called Baba. There are two things. So many years we've seen through, and the times that we have chosen to elevate ourselves, not getting into the suffering mode, it has helped us to take care of any situation. That was what I thought. Thank you, brother. Amrita Didi, today Baba said you have to be on stage so that everybody is watching you. So that intoxication every moment, even if I'm walking, so I am walking that gracefully, everybody is watching me. I'm looking into mirror, washing my face. So because in a mandir, what they do, they keep remembering our rituals and they keep worshipping and getting strength from those activities. So I need to imbibe that intoxication every moment I'm on what stage. So what's your say on it? Kindly share. बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि इतना अटेंशन, इतना अलर्टनेस हमारे अंदर हो कि हर कर्म करते हुए हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ जाए कि मुझे सब देख रहे हैं, तो अलर्ट। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज, लेकिन हर एक समय पर हमारे मन की स्थिति हम चेक करते रहें और उसको बाबा के डायरेक्शन अनुसार फ्रेम करते रहें। तो जो आपने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि हर एक एक्टिविटी जैसे वो बल देने वाली बन जाए, तो क्योंकि हमने अपना मन बुद्धि इन्वेस्ट किया है इन बाबाज रिमेम्बरेंस, तो उसके रिटर्न में हमें शक्ति अनुभव होती रहेगी। तो यस, बाबा ने भी मुरली में, अव्यक्त मुरली में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कर्म में बाबा की याद कैसे एसोसिएट करना है, आई थिंक इट्स अ मुरली ऑफ 71, उसमें बहुत सुंदर विधियां बताई हैं कि अमृत वेले सबसे पहले ना आप है, फिर बाबा से कंबाइंड हो, कर्म करते भी क्या कॉन्शियसनेस हो कि मैं आत्मा अपने इस देह रूपी मंदिर के अर्थ कर्म कर रही हूँ। भोजन बनाते समय क्या कॉन्शियसनेस हो, रेस्ट करते समय क्या हो, और सोने से पहले भी क्या कॉन्शियसनेस हो। तो बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है। तो अगर हम उसको अभ्यास करें तो डेफिनेटली बाबा से कनेक्टेड भी रहेंगे, अलर्ट भी रहेंगे, और हमसे फिर निरंतर वो सेवा भी होती रहेगी। तो वो हर एक्टिविटी जैसे एम्पावर करने वाली हो जाएगी। Sincere thanks. Lovely points. Thank you.
Sister, It's the in last which state will I get this about kaise Baba ke saath, how to imagine all these things? In which Murli will I get? In 71? Somebody has just rightly put it on the chat. It was the last Murli of 1971. So go through that Murli once very beautifully, that how to stay combined constantly with Baba while doing the activities. It's the last Murli of 70. Okay, thank you. Amrita, man, one point is coming to me right now when Anshuben was sharing that इतने साल भक्ति में जब भी हम थे, हम ज्ञान में आए उसके पहले, तब तक we were saying कि भगवान आओ मदद करो. We used to go to the religious places, मंदिर हो या गुरुद्वारे हो या wherever we used to go and say मदद करो. अब बाबा आ गए हैं और उसके बाद भी फिक्र करे, चिंता करे, तो फिर मतलब नहीं है ना. Like, you know, there is this small story. I know we are going beyond time with the journey, but it's it's so intoxicating and valuable right now. So we'll continue for a couple of minutes. There is this story about this priest who's at the mountain, and there is a flood that has come. There are different people who come in different forms. So he says, no, God will save me. And finally he drowns. And then he complains to God and says that, you didn't come to save me. He said, I came in various forms. You did not recognize me. So right now we recognize and we stay in that belief and in that experience that Baba is with us. Once we are there, then you are relieved and you are relaxed. Like Baba says, no, Nishchay Buddhi Vijayanti. Then there is no sunshine. Om Shanti. बाबा ने जो आज कहा ना कि God's children and they are full of attainments. ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बात की कोई कमी हो. If you're God's children, बस उस स्मृति में रहना है और वो स्थिति हमारी बनती जाएगी. वेरी ब्यूटीफुल. शक्तियों के ऊपर हंसा बहन ने बताया कैसे शक्तियों को यूज करना. इट वाज अ नाइस जर्नी. और किसी को कुछ कहना है? I guess, Amrita, you can now take up the meditation. So just a minute of meditation. We will again stabilize ourselves in Swaman. मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान शिव बाबा से कंबाइंड we are one. This awareness constantly keeps me empowered, detached, and a constant giver. I see myself, my part, as Baba sees it for me. Remain in the intoxication of who am I?
and that beautiful ultimate belongingness to Shiv Baba. I'm on a constant seva. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Amrita Ben. We shall see you again very soon on the group, and we shall all meet again tomorrow morning at 5:30. Om Shanti. Om Shanti. Everyone. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bye.